नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दुष्कर्म की शिकार मूक बाधिर नाबालिका को देखने के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की सभापति अग्निमित्रा को करना पड़ा विरोध का सामना। खोड़ीबारी निवासी एक मूक बधिर नाबालिका को कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद नाबालिग को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसको देखने के लिए भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पहुंची थी, लेकिन मेडिकल प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद अग्निमित्रा जमकर राज्य सरकार पर हमला बोली। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं और असुरक्षित है। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से व्यर्थ हो चुकी है। हमारे दार्जिलिंग जिलार माननीय सांसद श्री राजू बिस्तारी प्रतिनिधि दल हिसाब हमारे एखाने हमारे साथे आছেন हमारे काउंसिलर खुशबू मित्तल दीदी, हमारे मालती दीदी, दुजन काउंसिलर हमारे छोट्ट एक टीम निये করোনা পরিস্থিতির আবহে যাতে করোনার খুব বেশি মানুষকে ডিস্টার্ব না করে বা করোনা না ছড়ায় সেজন্য আমরা ছোট্ট একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে রাজু বিস্তারির তরফ থেকে এসেছি। এখানে বিশেষত এসেছি আমরা এখানে যে বিষয়টা নিয়ে সেটা হচ্ছে রাজু বিস্তারজি আজকে 4টি জায়গায় দার্জিলিংয়ে, কালিম্পংয়ে, ত্রিবেণীতে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং আমাদের এই হসপিটালে 5টি জায়গাতে আজকে একটা করোনা ওভেন দিচ্ছেন। করোনা ওভেনটা বিশেষত কী জিনিস আছে, একটা মেশিন আছে যেখানে ডাক্তারবাবুরা যারা এই করোনার সাথে সরাসরিভাবে যুদ্ধ করছেন, যোদ্ধা সৈনিক, তাদের যে সমস্ত ইকুইপমেন্টগুলো তারা ব্যবহার করছেন সেগুলোকে তারা স্যানিটাইজ করতে পারছেন। বা এই অফিসে যে সমস্ত বাইরের লোকরা এসে পেপার সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র দিচ্ছেন সেই পেপারগুলোকেও তারা স্যানিটাইজ করতে পারবেন। এই ধরনের একটা মেশিন আমরা আজকে এখানে সুপার হাতে প্রদান করব। কত টাকার মেশিন এখানে ব্যয় করা? দেখে মেশিনের অ্যাকচুয়ালি মূল্যটা আমার জানা নেই, কিন্তু মেশিনটা খুব একটা ভালো মেশিন এটা, এবং খুব এটা বড় মেশিন, বড় আকারের মেশিন আছে। এটা তো বিভিন্ন রকম জিনিস স্যানিটাইজ করতে পারবেন। এবং আগামী এবং এটা এই প্রথম নয়, রাজু বিস্তারজি এর আগেও বহু কাজ করেছেন। আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের করোনা যবে থেকে মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকে উনি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এখানে প্রায় 6.5 লক্ষ পিপিই কিট দিয়েছেন, 7 লক্ষ মাস্ক দিয়েছেন, 23.5 লক্ষ টাকা মেডিসিন কেনার জন্য দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে, এবং 126 কোটি টাকা এই করোনাকে মোকাবেলা করার জন্য যেসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার কথা ছিল এই হাসপাতাল, সেগুলো করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেহাল দশা আমরা দেখতে পাচ্ছি। করোনা ভারতবর্ষের জন্য, বিদেশের জন্য, প্রতিটি জায়গার জন্য একটা অভিশাপ, কিন্তু শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য করোনা একটা আশীর্বাদ। করোনাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে 9/6 জোচ্চুরি করে যাচ্ছে, মানুষ সেটা কিন্তু সরাসরিভাবে মানুষ বুঝে গেছে। 19-এ তো মানুষ তার একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েইছে। এবার যে করোনাতে মানুষ যেভাবে ভুক্তভোগী হয়েছে, মানুষ কিন্তু এর রায় কিন্তু 21-এ দিতে যাচ্ছে। এবং আমার পাশে যে মেয়েটিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে গণধর্ষণ করার পর, তার বাবা এবং মা এখানে আমার পাশেই বসে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 10 তারিখে সন্ধ্যে 7:30টার সময় মেয়েটি নিখোঁজ হয়। তারপরে মেয়েটিকে খোঁজা হয়, বাড়ির লোক তারা যা হয়, এবং 11 তারিখে তারা পুলিশের কাছে যায় এটা জানাতে যে তার মেয়ে নিখোঁজ। পুলিশ কিচ্ছু করে না। 14 তারিখে তারা একটি ভয়েস মেসেজ পায় এবং সেই ভয়েস মেসেজের লিঙ্ক ধরে তারা একটি ছেলেকে ধরে, তার নাম হচ্ছে রেহমান আলী, সে হচ্ছে এখন অ্যারেস্টেড। সেই রেহমান আলীকে ধরে তারা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মজার কথাটা হচ্ছে যে কাজটা পুলিশের করা দরকার ছিল, সেই কাজটা যদি তারা 10 তারিখে করতো বা 11 তারিখে করতো, তাহলে আজকে এনার মেয়ে জীবিত থাকতো। কিন্তু 14 তারিখে তারা যখন রেহমান আলীকে ওদের হাতে তুলে দিল পুলিশকে প্রমাণ দিয়ে, তখন পুলিশ চা সিগারেট খেয়ে, রেহমান আলীর সাথে চা সিগারেট খেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। এবং 17 তারিখে না 17 তারিখে তার মেয়ে 16 বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে স্কুলে পড়ে, তাকে
নির্মমভাবে গণধর্ষণ করে সেফটি ট্যাঙ্কের মধ্যে তারা উদ্ধার করে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই সরকারের কাছে, আর কত অত্যাচার করবেন আমাদের ওপরে? আর কত বাংলার নারীর ওপর, যার কোনো বয়সের কোনো ব্যাপার নেই? আজকে 6 বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে যেরকম ধর্ষিতা হচ্ছে, 75 বছরের বয়স্কা মানুষও সেরকম ধর্ষিতা হচ্ছে। 30 বছরের হচ্ছে, 50 বছরের হচ্ছে, গরিব হচ্ছে, বড়লোক হচ্ছে। আর কত অত্যাচার করবে? भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा पुलिस गोली चलाएगी तो भाजपा वाले फूल नहीं बरसाएंगे। भाजपा के प्रदेश महासचिव सायंतन बसु ने सिलीगुड़ी में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एवं राज्य की पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस भाजपा समर्थकों पर गोली चलाएगी तो भाजपा कर्मी उन पर फूल नहीं बरसाएगा। सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पुलिस पर बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। बसु ने कहा भाजपा प्रतिशोध लेने पर उतर आए तो सरकार का कोई प्रतिनिधि न तो उत्तर कन्या और न ही नवान्नों में बैठ पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा मंगलवार को भाजपा की ओर से कड़ंदीघी थाने का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चोपड़ा व अहमदाबाद कांड के दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। শিলিগুড়িতে একটা বৈঠক আছে, রবীন্দ্রর নেতৃত্বে আমরা একটা বৈঠকে বসবো, আমাকে উনি আমন্ত্রণ করেছেন। সম্পূর্ণ সাংগঠনিক বিষয়, যেহেতু আমি উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে আছি। বাকি আগামীকাল করণদিঘি থানা ঘেরাও, সেটা জোরদার হবে। আজকেও ওদের রায়গঞ্জে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস ঘেরাও ছিল, সেখানে আমাদের মহিলা মোর্চা রাজ্যের সভানেত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ছিলেন এবং আমার কাছে সূচনা আসলো বোধহয় 10-12 হাজার সংখ্যা হয়েছে, মহিলারা অনেক ছিলেন। চোপড়াতে যে ঘটনা ঘটেছে, হেমতাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে খুনিদেরকে গ্রেপ্তার না করে আমাদের পার্টির জেলার নেতাদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে। তো আমরা দেখতে চাই এই রাজ্য সরকার আর কতজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে। যদি এভাবে গ্রেপ্তার লীলা চালিয়ে যান, যেদিন বিজেপি গ্রেপ্তার লীলা শুরু করবে, না উত্তর কন্যায় কেউ বসতে পারবে, না নবান্নে কেউ বসতে পারবে। এটা কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছি, সময় থাকতে থাকতে শুধরে যান। তৃণমূল কংগ্রেসই তো অশান্তি করছে। বিশ্বভারতীর এই অশান্তিটা কারা করলো? বিজেপি করেছে। বীরভূমে যে ঘটনাটা ঘটেছে, আজকে সব সংবাদ মাধ্যমে এসছে, বিজেপি করেছে। চোপড়াতে যে গণ্ডগোলগুলো করলো, একটা মহিলার একটা মেয়ের সঙ্গে এরকম আচরণ করে তাকে খুন করলো, বিজেপি করেছে। যারা শান্তির দূত, তৃণমূলের ভোট ব্যাংক, তারা করছে। আমি তো পরিষ্কার বলছি, আমরা প্রতিশোধ স্পৃহা চাই না, করতে চাই না। কিন্তু যদি বিজেপি প্রতিশোধ স্পৃহা করতে চায় না, তৃণমূল কংগ্রেসের একটা নেতা বাঁচবে না, জেলের বাইরে একজনও থাকবে না। আমি লিখে দিচ্ছি আজকে আপনাদের কাছে, এর থেকে বেশি খোলসা করে কিছু বলতে রাজি নই। बड़ी राहत, आपके वाहन के कागजात की वैधता समाप्त होने के बाद भी नहीं होगी कार्रवाई। 31 दिसंबर तक मिली छूट। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि वाहनों से संबंधित सभी कागजात अब 31 दिसंबर तक वैध होंगे, जिनकी अवधि पहले 30 सितंबर तक की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 मार्च और 9 जून के बाद इस अवधि को तीसरी बार बढ़ाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, केंद्र सरकार से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित करने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 के मौजूदा हालात के मद्देनजर सोमवार को केंद्र सरकार से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित करने की अपील की है। जेईई परीक्षा देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, जबकि नीट का आयोजन मेडिकल में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए किया जाता है। ममता बनर्जी ने सोमवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में
खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने ट्वीट किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई हमारी पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं सितंबर के अंत तक विश्वविद्यालयों कॉलेजों में अनिवार्य रूप से परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधित यूजीसी के दिशा निर्देशों पर खुलकर अपनी बात रखी थी। इन परीक्षाओं के चलते छात्रों की जान खतरे में पड़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। बनर्जी ने सरकार से इस खतरे का आकलन करने और हालात सुधरने तक परीक्षाएं स्थगित करने की अपील की। आपको बता दें कि जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर जबकि जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जानी है। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2,967 नए मामले सामने आए हैं। 57 और लोगों की गई है जान। रिकवरी रेट बढ़कर 78.46% हुआ है। बंगाल में लगातार 10 दिनों तक कोरोना की 3,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सोमवार को इससे थोड़ा कम 2,967 नए मामले सामने आए एवं 57 लोगों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,41,837 हो गई है, जिनमें 27,694 एक्टिव केस है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,851 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,285 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,11,292 हो गया है। रिकवरी रेट बढ़कर 78.46% हो गया है, जो एक दिन पहले 77.78% था। मालदा से होकर जल्द ही गुजरेगी यात्री वाहन ट्रेनें, डीआरएम ज्योतिंद्र कुमार ने दी जानकारी। पूर्व रेलवे के डीआरएम ज्योतिंद्र कुमार और रेलवे के उच्च अधिकारियों के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विभिन्न ट्रेनों और यात्री वाहनों को शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद डीआरएम ज्योतिंद्र कुमार ने बताया कि मालवाही ट्रेनों को शुरू करने पर लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है ताकि सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द मालदा से 2 यात्रीवाही ट्रेनें भी गुजरेंगी, जिसमें एक आनंद विहार भी शामिल है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ, इसमें हमारे जमालपुर, भागलपुर और साहिबगंज के जर्नलिस्ट लोकल के थे और आज आप मालदा के भी आप लोग हैं। ये जो हमारी मेल एक्सप्रेस और जो हम लोगों ने अचीवमेंट किए हैं पिछले गत वर्ष में, उसके बारे में, प्लस अभी जो कुछ मालगाड़ियाँ और पार्सल हम लोग जो चला रहे हैं उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस लोगों को दे रहे थे। प्लस एक हम लोगों ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाया है जिसका कि काम है आप पूरे उसमें मंडल में खोज के सब जो वेंडर्स, जो लोडिंग हमारा कम हुआ है पार्सल वगैरह, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से सबके पास हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं, क्या उनकी समस्या है उनका सोल्यूशन हम लोग कर सकें और नए उनके जो माल की लदाई में कोई कमी ना आए। जैसे हम लोग स्टोन, फ्लाई ऐश और कोला, ये सब हमारे यहाँ से लोड होता है। उसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं उनका पार्सल ट्रेन कोई नहीं चल रहा था, तो एक हावड़ा से वीकली हावड़ा जमालपुर चालू हुई है, तो जिससे लोग अपना घी और सब्जियाँ, जो बाकी छोटे छोटे पार्सल हैं या कपड़े के जो व्यापार होता है आपका साहिबगंज, बड़रवा और भागलपुर, जमालपुर से जो सामान जाता है कलकत्ता, कि आप कलकत्ता से आता भी है जैसे आलू या और जो चीज़ें हैं उसके लिए। तो इसी तरह मालदा से हम लोगों ने एक आनंद विहार दिल्ली के लिए एक प्रस्ताव भेजा है रेलवे बोर्ड में, जो पार्सल इस ट्रेन का, क्योंकि मेल एक्सप्रेस या जो स्पेशल ट्रेन है वो तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार के आदेश के अनुसार अभी बंद है जब तक 30 सितंबर तक। सोनिया गांधी ही रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, कहा आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं। नया अध्यक्ष तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोमवार को 7 घंटे मीटिंग की, पर यह तलाश पूरी नहीं हुई। सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत में ही अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी।
इसके बावजूद अभी भी उन्हें यही जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह जरूर तय कर लिया गया है कि नए अध्यक्ष का चयन 6 महीने के भीतर कर लिया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि कांग्रेस कमेटी का अगला सेशन जल्द से जल्द बुलाया जाएगा ताकि नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जा सके। सोनिया ने बैठक के आखिर में कहा कि हम एक बड़ा परिवार है, हमें भी कई मौकों पर मतभेद होते हैं, लेकिन अंत में हम सब एक साथ होते हैं। अभी वक्त की मांग है कि जनता की खातिर ऐसी ताकतों से लड़े जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनके लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि वह भी मेरा परिवार ही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में आत्मरक्षा के लिए कराटे और मार्शल आर्ट्स सीखेगी सरकारी होम की लड़कियां। जिला प्रशासक ने उठाया नायाब कदम। मालदा के महिला सरकारी होम की युवतियों को आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से कराटे व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी सप्ताह से यह प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मालदा की चेयरपर्सन चैताली सरकार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला सरकारी होम में रहने वाली युवती व महिलाओं को हाथ के काम का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अब उन्हें आत्मरक्षा के कौशल सिखाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मालदा शहर के गौरबंग विश्वविद्यालय के पीछे स्थित सरकारी महिला होम में फिलहाल 35 लड़कियां रहती हैं। मुख्य रूप से बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न इलाकों में लावारिस हालात में बरामद की गई लड़कियों को इस होम में रखा जाता है। कभी कभी नारी तस्करी के चंगुल में फंसे लड़कियों व युवतियों को बरामद कर इन्हें इस होम में रखा जाता है। उन्हें विभिन्न
विभिन्न प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यहाँ इन लड़कियों को फूलदानी, कागज का ठोंगा समेत विभिन्न सामान बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कृत्रिम फूल, माला, बेत के सामान आदि सामग्री बनाना भी यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन चैताली सरकार ने बताया कि इससे पहले कन्याश्री परियोजना के तहत विभिन्न गर्ल्स स्कूलों में कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता था। सप्ताह में 2 दिन इन छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि शहर में एक ताइक्वांडो स्कूल प्रबंधन की मदद से ये प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह से सरकारी होम में भी लड़कियों को कराटे व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन यह प्रशिक्षित चलेगा। দেখুন, ওদেরকে বিভিন্ন হাতের কাজটা শিখিয়ে স্বাবলম্বী করা হয় এবং আগামী দিনে তারা যাতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে সেই জন্য আমরা তাইকোন্ডো ট্রেনিং দেওয়া হবে। সেলফ ডিফেন্সের জন্য আমরা তাইকোন্ডো ট্রেনিং দেওয়া হবে। এটা কি প্রথম? এর আগে 2-1 দিনের কোর্স হয়েছিল, কিন্তু সেটাকে আমরা কন্টিনিউ করে যাতে বেশ পুরো কোর্সটাই কমপ্লিট করা যায় সেটার দিকে। কতজন মহিলা আছে ওখানে? ওখানে এখন 30-35 জন মহিলা আছে। মহিলা বলতে তারা কিশোরী, তাদেরকে আমরা কতদিন করে ট্রেনিং হবে? আগামী সোমবার থেকে আমাদের বিভিন্ন কন্যাশ্রীর পক্ষ থেকে আমাদের সেলফ ডিফেন্সের বিভিন্ন স্কুলগুলোতেও আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং এটাকে যেহেতু করোনা একটা প্রকোপ চলছে সেই জন্য স্কুলগুলো বন্ধ। তো আমরা কিছু কিছু এলাকা ভিত্তিক মেয়েদেরকে নিয়ে, কিশোরী মেয়েদেরকে নিয়ে তাদেরকে আমরা এই ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি, যারা যেন তারা রাস্তাঘাটে চলতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে সেই জন্য আমরা এই ট্রেনিং। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत ढहने से 2 लोगों की हुई मौत, कई लोग अभी भी है फंसे, बचाव अभियान जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के काजलपुरा इलाके में सोमवार शाम एक इमारत ढहने की घटना के बाद पर खोज और बचाव अभियान जारी है। रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी के अनुसार अब तक 2 की मौत हो चुकी है, 18 की अभी भी फंसे होने की आशंका, जबकि 60 लोगों को बचाया जा चुका है। सोमवार को प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुलदेवता भगवान बलभद्र जी की जयंती पर समस्त कलवार जाति के लोगों के द्वारा कलवार पैलेस जेवी सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पूजा अर्चना की गई। वैश्विक महामारी का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बहुत हर्षोल्लास के साथ कुलदेवता का पूजन समारोह मनाया गया, जिसमें कलवार संगठन के सभी अधिकारियों के साथ साथ स्वजाति बंधु भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जेवी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन बिहारी गुप्ता के अलावा राजेश साहबादी, भरत गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल गुप्ता सह अन्य उपस्थित थे। साथ ही कलवार महिला समाज की अध्यक्षा भारती कुमारी, सचिव अशोक गुप्ता सह अन्य महिलाएं उपस्थित थी। भारत के नजदीक परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका B-2 बम पर तैनात, चीन को दिया साफ संकेत, नहीं चलेगी दादागिरी। चीन की हेकड़ी दूर करने और भारत का पूरी ताकत के साथ देने की तैयारी दुनिया के कई देश कर रहे हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित अपने दिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर स्थित B-2 बम वर्षकों की तैनाती कर दी है। परमाणु हथियारों से लैस ये विमान दुनिया का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। इसकी स्थिल कैपेबिलिटी इसे किसी भी डरार की पकड़ से बचाती है। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में तैनात बढ़ा रहे चीन के लिए भारतीय जमीन से पीछे हटने का अमेरिका की ओर से यह साफ इशारा है। चीन के साथ साथ तनाव को देखते हुए हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने सामरिक दृष्टि से अहम स्थानों पर अपने पोत तैनात किए हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसैनिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास पिछले महीने अमेरिकी और जापान की नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। इसमें अमेरिका नौसेना का USS निमित्त कैरियर स्ट्राइक समूह भी था, जो परमाणु हथियारों से लैस है। इन सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज INS राणा और INS कुलिस शामिल हुए थे। दुनिया में कोरोना वायरस अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को बना चुका है अपना शिकार। 2.38 करोड़ संक्रमितों में से 1.63 करोड़ लोग हो चुके हैं ठीक।
WHO ने कहा प्लाज्मा से कारगर इलाज होने के कम सबूत। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,38,06,794 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,63,56,848 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,16,950 की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि ब्लड प्लाज्मा से संक्रमितों की सुरक्षित और कारगर इलाज होने के काफी कम सबूत है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने सोमवार को ट्रंप की ओर से अमेरिका में प्लाज्मा की मदद से मरीजों के इलाज को मंजूरी देने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज को लेकर बहुत सारे शोध हो रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ में ही इसके असरकारी होने की बात सामने आई है। अमेरिकी साइंटिस्ट और व्हाइट हाउस कोरोना स्टाफ फोर्स के मेंबर डॉक्टर एंथनी फांसी ने जल्दबाजी में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कहा। बिना समुचित ट्रायल के किसी वैक्सीन को मंजूरी देने से दूसरे वैक्सीन के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। उनके लिए ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों को जुटाना कठिन होगा। यूएन में भारत ने पाकिस्तान के झूठों का किया भंडाफोड़। भारत ने कहा पाकिस्तान के इस बयान पर हंसी आती है कि हमने उसके खिलाफ भाड़े के आतंकी रखे हैं। पाकिस्तान मिशन की ओर से यूनाइटेड नेशन यूएन में बोले गए झूठ से भारत ने सोमवार को पर्दा उठाया। यूएन स्थित भारतीय मिशन ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान के उस दावे को हास्यास्पद बताया कि जिसमें कहा गया है कि भारत ने उसके खिलाफ भाड़े के आतंकी रखे हैं। भारतीय मिशन ने बयान में कहा, हमने पाकिस्तानी मिशन के संयुक्त राष्ट्र में दिए उस बयान को देखा है जिसमें दावा किया गया है कि ये बातें पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कही थी। हम यह समझने में नाकाम है कि पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद सत्र आज गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। भारतीय मिशन ने आगे कहा कि बयान में पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ का खुलासा हुआ है। भारतीय मिशन ने कहा, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब खुद को भारत की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बताने का ढोंग कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।